Hello everyone. In this video, we'll learn how to find out the square root. So to find the area and perimeter of square with one side 5 centimeter. So the question we have is to find the area and perimeter of square with one side 5 centimeters. And find the area of square where AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 5 centimeter. तो इसका मतलब ये है कि वी हैव अ स्क्वायर ओके हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर्स. तो इसका मतलब है सारी साइड बराबर होंगी तो सारी 5 सेंटीमीटर है. और इफ इट इज गिवन ए बी सी डी तो क्या बोला क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी. तो इसका मतलब क्या है ए बी बी सी के बराबर है यानी कि अगर ए बी 5 है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर्स है. बी सी इज इक्वल टू डी सी 5 सेंटीमीटर्स है. दोबारा से ये 5 सेंटीमीटर्स है. ओके सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. नाउ ए बी इज इक्वल टू अब हम एरिया कैसे निकालते हैं. वी हैव लर्नड दैट वी मेक 1 2 3 5 boxes this side 1 2 5 boxes this side. What is the area of this figure 25. तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था that if we have to take out area of square of any measure तो हम सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनाते थे कि अगर मैं एक साइड को दूसरे साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा उस स्क्वायर का एरिया. सो हियर वन साइड इज 5 अनदर साइड इज आल्सो 5. तो एक्चुअली वी नीड ओनली वन मेजर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ square. So this is 5 centimeters multiplied by 5 centimeters and we say that this is 25 squares of 1 centimeter each. और हम क्या लिखते हैं इसको डायरेक्टली 25 square centimeter or 25 centimeter square. So these are the sign convention. If or it is also asked to find the perimeter. So what is perimeter? Perimeter is the boundary. So this is the boundary. A से B गए, B से ये गए, B से D से ये गए. This is the boundary of this. So what will be the perimeter? So this is 5 centimeters plus 5 centimeters plus 5 centimeters plus 5 centimeters. So in total the total boundary is 20 centimeters. What if the question is given? अब यहाँ सीधा एरिया निकालना तो बड़ा आसान है. अब क्या अगर एक क्वेश्चन दिया हो कि this is a square, okay, this is a square and its area is, so what is area? The space around it, the space inside this. ठीक है. So the area inside this square, the area of this square. ठीक है. We have to cover each part. आप लोग कलर नहीं करते हो, आपको कलर करके इजीली पता लग जाता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. So this is a square. Its name is P Q R S and let us suppose that this area is 196 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस स्क्वायर में 190 स्क्वायर हैं, 96 स्क्वायर हैं 1 सेंटीमीटर वाले. अब आपको क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वन साइड. अब एक साइड नहीं पता तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता and ये भी नहीं पता. So what we have learnt that if we don't know any side, so we assume it. So let us say that this side is y. y ये भी y होगा. हमें पता है कि अगर एक साइड y है एक साइड 2 है तो सभी 2 होंगी. तो वैसे ही हम assume करके चलते हैं कि y is a number. Let us suppose y is a number that is the side of square. अब फॉर्मूला क्या है लिखने का तरीका? I'm just telling you that area of square is 196 square centimeters. What is actually area? क्या होता है? One side multiplied by another side. ठीक है. So अगर मैं एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए?
196 square centimeters. अब विथ स्मॉल नंबर्स तो इट्स इजी कि अगर 25 है तो हमें पता होगा 5 5 इज 25 एंड वन साइड इज 5. If it is 49, we know that 7 sevens are 49, so one side will be 7. If it is 36, we know that 6 6 are 36, so there will be one side is 6. But what if the number is big? So we have developed a method of this that is called square root. Means one side अगर निकालना हो तो हम square root निकालते हैं. How do we write it? Firstly, this will be written as we have taken this side as y times y and 196 square centimeter. Y times y will be written as y square and this is 196. अब हमें y स्क्वायर यहाँ अटक जाते हैं. हम y स्क्वायर कैसे निकालें? तो हम इसको कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 196. ठीक है, दिस इज द वे ऑफ टेकिंग आउट दिस वन अंडर रूट. अब अंडर रूट ये आपका साइन कन्वेंशन है कि अगर हम एक y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इक्वल टू के दूसरी साइड इसको अंडर रूट में डाल देते हैं. For this we learned how to do prime factorization. So 2 8s are 6, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 7 7s are and 7 1s are. Next step, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? आगे क्या करेंगे? आगे y is equal to under root of, we'll put these all pairs in this root. 2 into 2, 7 into 7, जितने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं हम इसमें लिख देंगे. अब हम इनके बनाएंगे पेयर. दिस इज फर्स्ट पेयर, so we'll take out this is second pair, we'll take out this, and y is equal to 14 centimeters. This is the required answer. What if the रूट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. कैसे? आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास आंसर यही आएगा. आप जब इसके अंदर स्क्वायर्स बनाएंगे तो द आंसर विल बी दिस ओनली. व्हाट इफ द एरिया इज 392 square centimeter? How will you find one route? I'm just telling you you will learn this concept in higher classes. I'm just telling you the way of writing. Again, let us suppose this side is s, this side will also be s. Side square is 392. अब हमें अगर एक साइड निकालनी है तो हम कैसे लिखते हैं? We put it in a root. This is a 392. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? We take out the prime factors. 392, 2 1s are 2, 9s are 18, 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 49s are 7 7s are 7 1s are. अब इसके बाद क्या कहा था हमने? सेकेंड स्टेप विल बी, हम क्या करेंगे? s इज इक्वल टू अंडर रूट में हम ये सारे प्राइम फैक्टर्स डाल देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. देखो 2 7 है, 3 है, तो हमने यहाँ लिख दिया. अब बनाएंगे हम पेयर. फर्स्ट पेयर तो बन गया, दिस इज 2. सेकेंड पेयर भी बन गया, दिस इज 7. और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे. इसको हम लिखेंगे इसी के अंदर कि हमें इसका पेयर नहीं मिला तो हम इसको यहीं रहने देंगे. अब हाउ विल वी राइट इट? विल राइट इट एज 14 अंडर रूट 2. So one side will be 14 under root 2. This is the way of writing when you don't have perfect pairs.